ویلکم بیک۔ شہرنامے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے گجرانوالہ تھانہ سول لائن کے علاقے میں وابڈا آفس میں کچھ افراد جعلی کارڈ دکھا کر حساس ادارے کے آفیسر بتا رہے تھے۔ شک کی بنیاد پر وابڈا آفیسر نے تھانہ سول لائن کو اطلاع دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا جاوید محمود سے۔ جی، اس وقت میں گجرانوالہ تھانہ سول لائن SHO عدنان اعجاز کے ساتھ موجود ہوں کہ 3 جو ملزمان سے وہ پکڑے گئے جو کہ اپنی شناخت اساس داری کی کروا رہے تھے، بروقت کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے ملزمان وابڈا آفس سے پکڑے۔ آئیے عدنان اعجاز سے بات کرتے ہیں، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ سر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ کل دن کے وقت ہم آفیشیل ورکنگ کر رہے تھے تو ہمیں ٹپ ملی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کر کے گیپکو میں آئے ہیں اور چھوٹے سے کچھ معاملات کو آفیشیل معاملات کو گیپکو کچھ آفیشیل معاملات میں وہ اپنا رول کرنے کی یا کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اسٹیپ پہ اس انفارمیشن پہ میں گیا اپنی ٹیم کے ساتھ۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں اور پہلے ہم نے آف دی ریکارڈ چیک کیا ان کے پاس کسی قسم کی، وہ جب آف دی ریکارڈ چیک کیا تو یہ نہیں لگ رہے تھے کہ سینسٹیو ادارے کے لوگ نہیں لگ رہے تھے۔ تو پھر ہم نے ان سے باقاعدہ طور پہ تھارولی ان پر مانگی، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن مانگی۔ تو انہوں نے ان میں سے ایک بندے نے ہمیں ایک کارڈ جو ہے وہ دکھایا جو بالکل ڈوبیس تھا، جعلی تھا، جس پہ ایک حساس ادارے کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اور پھر مزید جو ہم نے سرچ کیا تو ہمیں 6 لاکھ سے زیادہ کیش بھی ملی، جو ہمیں لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے من گھڑت طریقے سے لوگوں کو نوسر بازی کر کے لوٹا ہوا ہے، جس پہ ہم تفتیش کریں کہ ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ جاری ہے۔ پلیز۔ جی، تھانہ سول SHO عدنان اعجاز کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو جب ان کی تفتیش کی تو ان کے جو کارڈ تھے بوکس سے ہم نے ان سے 6 لاکھ روپیہ رقم بھی وہاں پہ ان سے جو برآمد کی اور ہم نے انہیں لا کر پرچہ درج کر دیا اور تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی، جھنگ سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر جھنگ میں دریائے چناب میں ترنگوں کے مقام پر 1,03,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ 45 سے زائد دیہات زیر آب آنے سے فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جبکہ ریسکیو اہلکار کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مزید بات کر لیتے ہیں، جنگ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران انصاری۔ دریائے چناب کا سیلابی ریلا اس وقت جنگ کے مقام سے گزر رہا ہے اور اس وقت تریمو بیراج سے اس کا اخراج 1,03,000 کیوسک کا سیلابی ریلا اس وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت بات کر لی جائے اس علاقے کی جنگ کے حوالے سے تو یہاں پر اس وقت سیلاب آنے سے یہاں پہ کھڑی فصلیں پوری طرح متاثر ہو گئی ہیں اور جس کی وجہ سے یہاں کے شہریوں کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس وقت ریسکیو اہلکار یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید تفصیلات ان سے۔ جی، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسنین صاحب کی ہدایت کے مطابق جتنا بھی فلڈ پر ایریا ہے چنیوٹ روڈ سے ریتر جہاں پر دریائے چناب کا اینڈ ہوتا ہے جن میں مختلف پوائنٹوں پر ریسکیو ایمرجنسی پورٹ سے ٹائم کی گئی ہیں، جہاں پر تمام ریسکیو سے ہیلتر بوٹس اور باقی ضروری سامان تجارت وہاں پر موجود ہیں اور اگر لوگوں نے نقل مکانی کرنی ہے تو ان کے لیے وہ ریڈی ہیں اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی ریڈی ہیں، کیونکہ اسٹور جانے چاہیے یا دفاتر میں جانے چاہیے اگر کسی کو ضرورت پڑے گی تو ریسکیو ہیلتر وہاں پر موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی فلڈ ریلیف کیمپس میں بھی ریسکیو ہیلتھ والوں سے کیمپ لگے ہوئے ہیں اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر علی حسنین صاحب تمام آپریشن کی دن رات نگرانی طور کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے، اس حوالے سے ریسکیو انچارج بھی اس حوالے سے اس کو فل ان کی جانب سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پانی کی صورتحال کافی زیادہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ جی، پاک پتن میں دریائے ستلج میں ممکنہ سیلاب کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں دریائے ستلج پر موجود اپنے نمائندے ایوب چاولہ سے۔ جی ایوب چاولہ، کیا صورتحال ہے، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پاک پتن دریائے ستلج آبادی صلاح الدین میں موجود ہوں۔ یہاں پر جو ہے بھارتی آبی جارحیت کا سلسلہ دریائے ستلج میں تیزی سے جاری ہے۔ پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے۔ کسانوں کی سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر آب آ چکی ہے، فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت کچھ علاقہ میں کسان موجود ہیں، انہی سے جان لیتے ہیں کہ بھارتی آبی جارحیت سے ان کو کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈیا دی وجہ تو جڑا چھڈا گیا پانی ان دی وجہ تو بڑا نقصان ہویا ہے، جن دے تیلاں دی فصل ہیں، اس تو علاوہ چاولاں دی فصل ہیں، مکی دی فصل ہے۔ تیل تے مکی دی فصلاں دی کٹائی کر رہا ہے رات پانی بہت زیادہ ہو گیا، جن دی وجہ تو 50 ایکڑ مکی تے تیلاں دی ایسے فصل جڑی بالکل خراب ہو چکی ہے۔ بہت زیادہ پنڈ پاک پتن ہے جنہ پانی پی چکا ہے، جن دے وچ تارو ملے کی رڑی گدائی، اس تو علاوہ آ گیا چکر آلو کا آ گیا، صلاح الدین دی پینی آ گیا، اس تو علاوہ بہت چھوٹے چھوٹے پنڈ ہیں
रहमानी हो गई, आलो का, उस बाद आलो की बहनी हो गई, इस तरह बहुत ज़्यादा हैं जिनका पानी पै चुका है। जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि 12 से ज़्यादा जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो मुकम्मल तौर पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानब से कोई खातिर ख्वाह इंतजाम देखने को नहीं नज़र आ रहे। जी, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मंचनाबाद में मुमकिन सैलाब की सूरत हाल पर दरियाए बेल्ट के मुख्तलिफ मौज़ाजात का हंगामी दौरा किया गया है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कायम रिलीफ कैंप्स का मुआयना भी किया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भवन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रज़ा AC मंचनाबाद, अहमद जावेद चीमा SE इरिगेशन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद यूसुफ छीना और दीगर अफसरान, महकमा हेल्थ, लाइव स्टॉक और रेस्क्यू के अफसरान और दीगर महकमों के ज़िले अफसरान ने भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने रिलीफ कैंप्स में हेल्थ और लाइव स्टॉक और दीगर महकमों ने मुतवक्का सैलाब में अपने हंगामी प्लान्स पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। शकरगढ़ दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी इलाकों से तो गुजर गया, मगर किसानों के लिए दास्तानें छोड़ गया है। शकरगढ़ जस्सड़ के मकाम पर दरिया रावी का बहाव 20,000 क्यूसिक है, जबकि जलाला के पाकिस्तान में दाखिली मकाम पर बहाव महज 3,000 क्यूसिक है। हंगामी सूरत हाल है, किसानों को फसलें लगाने में मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जलाला से जस्सड़ तक इस सैलाबी रेले ने झनमान सिंह, धारेवाल और करब जवार के मज़ाफ़ात के सैकड़ों एकड़ अराजी रकबे पर धान की पनीरी, मकई और गन्ने की फसल को मुतासर किया है। धारेवाल में एक आर्जी रास्ता भी रेले में बह गया। किसानों ने हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। दरिया रावी के पार नशेबी इलाके चक झंदड़, करतारपुर, चंदमान सिंह, धारेवाल, चंदियावाली में खेतों में काश्तकारी मुतासर हुई। धान, कमान, मकई और करेले की फसलें तबाह हो गईं। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी और डिविजनल अमन कमेटी के मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया गया है। इजलास में RPO महबूब रशीद और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत जय्यद उलमाए किराम सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, कारी बशीर अहमद, इसके साथ साथ एल्डर रोवर जानी और गुलाम साबिर ने भी शिरकत की है। उन्होंने इंतज़ामी और पुलिस अफसरान पर जोर दिया है कि वो मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलजना और मजालिस के मुंतज़मीन के साथ करीबी रवाबित रखें। उन्होंने मुहर्रमुल हराम के दौरान ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल पाबंदी करने के अहद की। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी शरपसंद अनासर को सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से फ़िरका वारियत फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुहर्रमुल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद और DSP नदीम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ साथ ही हारूनाबाद के मकामी इंतज़ामिया ने अमन अमान बरकरार रखने और अज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद और DSP नदीम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुहर्रम के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने और मजहबी रवादारी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम और तजावीज़ पर गौर किया गया। मंडी बहाउद्दीन में डिप्टी कमिश्नर और DPO ने ज़िले में अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से ज़िले अमन कमेटी के अरकान की मिसाली ताउन से मुशावरत को सराहा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रज़ा सफदर काज़मी का खिताब करते हुए कहना था कि इस्लाम अमन व सलामती का दीन है जो सब्र, तहम्मुल, रवादारी, इत्तेफाक व इत्तेहाद और भाईचारे का दर्ज देता है। मुहर्रमुल हराम के महीने में पुलिस, सिक्योरिटी इदारे, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम, अंजुमन ताजरान और दीगर स्टेक होल्डर्स की मावनत से ज़िले में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। उलमाए किराम आवाम में हम आहंगी, मोहब्बत, अखुवत और बर्दाश्त को फ़रोग़ देकर अमन व सलामती की फ़िज़ा बरकरार रखने में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। पीर महल में 10 मुहर्रम के जुलूस की तैयारी के लिए असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच और DSP सर्कल मोहम्मद ज़फ़र और CEO म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद ज़हीर ने मरकज़ी इमाम बारगाह कसरा अबी तालिब का दौरा किया है। पीर महल मरकज़ी इमाम बारगाह कसरा अबी तालिब के दौरे के दौरान DSP सर्कल मोहम्मद ज़फ़र, असिस्टेंट कमिश्नर नदीम बलोच और CEO म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद ज़हीर ने तमाम इंतज़ामात को चेक किया। हमरा इंतज़ामिया कमेटी मरकज़ी इमाम बारगाह कसरा अबी तालिब के कारकुनान को ताकीद की कि मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जुलूस के दाखिले और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगा के बंद किया जाएगा और तमाम रास्तों पर CCTV नस्ब किए जा रहे हैं। CCTV की कारकर्दगी को चेक करते हुए मज़ीद बेहतर करने के अहकामात भी जारी किए गए।
शहरनामे के सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि खानेवाल में मुहर्रम उल हराम के मौके पर ज़िले भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और इंतजाम की तैयारियां जारी हैं। DPO राना उमर फारूक ने मेंबरान अमन कमेटी और दीगर पुलिस अफसरान के हमरा जुलूस रूट का दौरा भी किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलाउद्दीन मिर्ज़ा से। मुहर्रम की तैयारियों के हवाले से DPO खानेवाल ने शहर भर का दौरा किया, सिक्योरिटी और इंतजाम का जायज़ा लिया। तो इसमें बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, तैयारियां भी जारी हैं, मज़ीद कर ली हैं, कुछ करनी जा रहे हैं, तो क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमन के हवाले से आपने देखा है कि यहाँ पर हमारे अमन कमेटी के तमाम तर लोग मौजूद रहे। मुहर्रम उल हराम का महीना जो है उसकी आमद और उससे पहले इंतज़ामी अमूर, सिक्योरिटी अमूर को मुकम्मल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे जो लाइसेंस होल्डर हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मीर बाबर साहब, इन्होंने ख़ुद मुझे एक एक चप्पा जो है वो रूट का दिखाया है। काफ़ी लंबा रूट है, इसमें जितने भी अमूर नज़र आए सिक्योरिटी और इंतज़ामिया के हवाले से उनकी मुतलका डायरेक्शन जो है वो हमने अभी पास कर दी हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे लाइसेंस होल्डर्स हैं, हमारी अमन कमेटी के बड़े खुसूसी और बड़े महबूब लोग हैं, इन सब को हम बड़ा प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे ताकि मुहर्रम उल हराम की जितनी भी इबादत हैं उसमें इंतज़ामिया जो है एक असिस्टेंस का रोल प्रोवाइड करेगी और इनको हमारी तरफ से मुश्किलात की बजाय इनको आसानियाँ इंशाल्लाह हमारी तरफ से मिलेंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की गुफ्तगू सुनी, मज़ीद हम बात कर लेते हैं अंजुमन हुसैनिया के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, रूट साहब ने किए DPO साहब के साथ, किस हद तक इंतजाम से मुतमिन नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत तो ये है कि आपसे 3 घंटे पहले मैं बहुत सारे ख़तरात और वसूलों में घिरा हुआ था, मगर आज DPO साहब की परफॉर्मेंस देखकर मैं इनका कायल हो गया हूँ। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में 40 साल से मैं ये खिदमत कर रहा हूँ, ये पहले DPO हैं जो पैदल, जिन्होंने पूरा रूट देखा है। AC साहब ने, इन्होंने और इनके पूरे स्टाफ ने, हम इनके बहुत ज़ाती तौर पे मशहूर हैं। अब कोई बात तो छुपी हुई रह नहीं गई, एक एक ईंट इनके सामने आ गई है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये अब हमें, और हम भी इनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इंशाल्लाह इनसे पहले वहाँ मौजूद होंगे और हम पूरी तरह मुतमईन हैं, इंतज़ामी हवाले से भी और पुलिस के हवाले से। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं उस हवाले से जो है अंजुमन हुसैनिया के जो अहदेदारान मुकम्मल जो है एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जी, वज़ीराबाद में MC वर्कर्स यूनियंस और एम्प्लॉयज़ यूनियन का पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना दे दिया। शहर भर में काम बंद कर दिया गया, गलियां मोहल्लों में गंदगी के ढेर, जबकि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा न किए जाने पर वज़ीराबाद में भी बल्दिया मुलाजमिन का एहतजाज जारी है। MC वर्कर्स यूनियन और एम्प्लॉयज़ यूनियन के मुलाजमिन ने काम छोड़ो हड़ताल कर दी है, दफातर को ताले लगा दिए हैं, दफ्तरी अमूर मअतल, जबकि MC वर्कर्स ने सफाई की ड्यूटी मअतल करके झाड़ू और सफाई के औजारों के साथ धरना दे दिया। बल्दिया मुलाजमिन की जानिब से वाटर सप्लाई के अलावा सफाई समेत तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। दफातर को ताले। मुलाजमिन चेयरमैन एम्प्लॉयज़ यूनियन जुनेद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी दाऊद चीमा, सदर MC वर्कर्स एसोसिएशन सज्जाद मसीह, जनरल सेक्रेटरी रियासत मसीह अब्दुल रहमान भट्ट, राना बाबर, अरसलान घुमन और दीगर ने कहा है कि दीगर सूबों की तरह पंजाब हुकूमत तनख्वाहों में इजाफा करे, सरकारी मुलाजमिन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक बंद किया जाए। म्यूनसिपल कमेटी वज़ीराबाद के मुलाजमीन भी तनख्वाह और पेंशन के मामले पर पंजाब हुकूमत के इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन ने दफातर के बाहर सहन में एहतजाजी धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का कहना है कि पंजाब भर के मुलाजमीन की तरह म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन तनख्वाह और पेंशन में कटौती, महंगाई के तनासब से तनख्वाहों में कलील इजाफे और पेंशन में मामूली 5% इजाफे को मुस्तरद करते हैं। मुलाजमीन की जानिब से एड हॉक रिलीफ पैकेज न मिलने पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। जामशोर कोटरी में घोटकी सानी के खिलाफ बच्चों की जानिब से भी एहतजाज किया गया है। घोटकी में गुज़िश्ता रोज़ सलमान और कुलसुम के मुबैना कत्ल के खिलाफ समाजी तंजीम की जानिब से अलमदीना चौक से रैली निकाली गई। रैली का अख्तिताम प्रेस क्लब कोटरी के सामने किया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत इकबाल कोरेजी, जाती घरियानी, खलील शाह समेत दीगर की जानिब से की गई। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और वर्षा के साथ इंसाफ किया जाए। तहसील संबड़ियाल में बल्दियाती काम ज़ोर व शोर से जारी है। साबिक MP चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच की काविशों से संबड़ियाल के मुख्तलिफ महलों की 15 गलियां तामीर और 12 ट्रांसफार्मर्स लगा दिए गए हैं। PMLN के साबिक MP अरशद वड़ाइच ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संबड़ियाल की आवाम की खिदमत मेरी अवलीन तरजीह है।
مجھے افسوس ہے کہ پچھلے 5 سال ہم حکومت میں نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں سمبڑیال کی عوام کی خدمت کرنے سے محروم رہا، لیکن تارکی کا وقت ختم اور ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت جلد سمبڑیال کی عوام کو مزید خوشخبریاں سنائیں گے۔ دوسری طرف سمبڑیال کی عوام میں بھی خوشی کی لہر نظر آ رہی ہے، جس میں سمبڑیال کی عوام کا کہنا ہے کہ ایک عرصے کے بعد سمبڑیال میں گلیوں محلوں کے حوالے سے ترقیاتی کام دیکھ رہے ہیں۔ عمرکوٹ میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی جانب سے یوم شہداء منایا گیا۔ یوم شہداء پر ڈویژنل آفیسر سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بڑی تعداد میں ہیسکو ملازمین نے شرکت کی ہے۔ ریلی کی قیادت ڈویژنل چیئرمین رضوان علی گھمبار، افضل آریسر، بادل راہمو کر رہے تھے۔ اس موقع پر ہیسکو ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں حفاظتی کٹس اور ضروری آلات فراہم کیے جائیں، ہنگامی بنیادوں پر ملازمین کی کمی کو دور کیا جائے، جبکہ بونس کے ساتھ شرائط کو ختم کیا جائے۔ گھوٹکی میں قتل ہونے والے معصوم بچے کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ٹاؤن کمیٹی سے پریس کلب ٹھل تک احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی میں شریک کامریڈ لیاقت سرکی شعیب سندھی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹکی میں بے دردی سے قتل ہونے والے معصوم بہن بھائیوں کے قاتلوں نے انسانیت کو شرمسار کر دیا اور ایسے قاتلوں کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں۔ ہم ایس ایس پی گھوٹکی تنویر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معصوم بچوں کے قاتلوں کو جلد سے جلد گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنائیں اور قتل ہونے والے بچوں کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے ڈیوٹی کے دوران بجلی کا کام کرتے ہوئے شہید ہونے والے ملازمین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم شہداء منایا گیا۔ زونل چیئرمین عبداللہ سومرو اور محمود پٹھان کی قیادت میں ایسی آفس سے سینکڑوں ملازمین نے ریلی نکالی، جو کہ مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی رائل چوک پر پہنچ کر جلسے کی صورت اختیار کر گئی، جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبداللہ سومرو نے سجاد حسین، محمود پٹھان، ریاض سانگی، ہادی بخش، زاہد عباسی اور دیگر نے کہا کہ وابڈا کی سیفٹی پالیسی پر عمل درآمد نہ کرنے، جبکہ 12 سالوں سے اسٹاف کی کمی کے باعث آن لائن اسٹاف کی معیاری TNP میسر نہ ہونے کی وجہ سے حادثات رونما ہو رہے ہیں اور ہمارے مزدور ڈیوٹی کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 2022 میں 60 لائن مین شہید ہوئے اور اس سال بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ 12 سالوں سے بھرتیاں نہیں کی گئیں، انتظامیہ جان بوجھ کر بے گناہ مزدوروں کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے۔ انہوں نے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سیپکو میں فوری طور پر بھرتیاں کی جائیں، سیفٹی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ خانیوال ملک طارق نوناری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر پنجاب بار کونسل کے 3 بھتیجے لاپتہ ہو گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ آفیسر رانا عمر فاروق کی جانب سے چند ہی گھنٹوں میں بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ ملک فاروق ناری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ممبر پنجاب بار کونسل کے چھوٹے بھائی ملک ساجد کے 3 بچے جو چیز لینے کے بہانے گھر سے لاپتہ ہو گئے تھے، جس پہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اور SHO اور مار سعید کی نگرانی میں جو آپریشن کیا گیا، جسے چند گھنٹوں میں جتنے ہمارے ساتھ موجود ہے SHO محمد اسران جو سٹی میں تعینات ہے۔ سر بتائیے گا، بار بار پیش کرتے ہیں DPSP صاحب کی نگرانی میں اپنے بچے باضابطہ کو کیا کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ بچوں کی گمشدگی کا ایک بہت ہی سیریس میٹر تھا، جس میں DPO صاحب خانیوال نے پر وقت ایکشن لیتے ہوئے ہمیں انسٹرکشنز جاری دی ہیں۔ ان انسٹرکشنز کی روشنی میں ہم نے ڈفرینٹ ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ان ٹیموں میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو مختلف جو شہر کے جگہ ہیں انہیں ہمیں وہاں پہ بھیجا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ہم نے CCTV کیمراز اور شہر کے مختلف علاقوں میں ہم نے وزٹ کیا۔ ان CCTV کیمراز اور شہر کے مختلف لوگوں کی انفارمیشن سے ہم جو ہے وہ اس ہدف تک پہنچے ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بچوں کو ان کے والدین تک پہنچایا۔ بچے کہاں سے جی یہ بچے اپنی بتا رہے تھے کہ اپنے گھر سے تھوڑی ناراضگی کے باعث وہ گھر سے نکلے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کی نانی اماں کا گھر جہانیہ تھا، اور وہ پیدل ہی، چونکہ بچے تھے وہ پیدل ہی انہوں نے یہ سفر شروع کر دیا۔ خانیوال سے تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا، تو اس کے بعد ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، جس کی بیس پہ ہم وہاں پہنچے ہیں اور بچوں کو خیر و عافیت سے ان کے والدین کے حوالے کیا۔ بالکل SHO تھانہ سٹی محمد اسران کا یہ کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی طرف سے یہ بڑا آپریشن کیا گیا ہے، جس پہ بچے جو ہے وہ والدین کے حوالے کر دیے ہیں، اور شہریوں کا یہ کہنا تھا کہ
मामू कांजन दो मोटरसाइकिलों के तसादम के नतीजे में नौजवान जाम बहक हो गए। इलाक़े थाना मामू कांजन में गुज़िश्ता रात अवीज़ अकबर के हमरा बसवारी मोटरसाइकिल दरबार महबूब शाह से वापस गांव की तरफ आ रहे थे कि झक्कड़ मोड़ के करीब सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिस पर शाहिद अली, आसिया बीबी, इम्तियाज़ अली सवार थे। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाते हुए अवीज़ अकबर जाम बहक हो गया, जबकि 3 अफराद शाहिद अली, आसिया बीबी, इम्तियाज़ अली की टांगें टूट गईं। जख्मी को साहिवाल DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मीरपुर खास में 8 माह कबल तालुका थाने में ज़मीनी तकरार पर कत्ल होने वाले हैदर लगारी केस में रुपोश मुलजिमान गिरफ्तार न करने और दुकानों पर कब्जे के खिलाफ मुतासर बरादरी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। रहनुमाओं की जिलानी हाउस पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बेहतर खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसियों में बेहतरी आई है। मज़ीद भी आपको बताएं कि लगारी को इलाके के बासर कुर्बान लगारी, इरफान लगारी और दीगर ने सरेआम गोलियां मारकर कत्ल किया था, जिस केस में 3 मुलजिमान को अदालत ने सज़ा सुनाई। एक मुलजिम यार मोहम्मद लगारी अब तक रुपोश है। उन्होंने कहा कि मुखालिफ पार्टी अब हमारे दुकानों पर कब्जा कर रही है। पुलिस मुबैना तौर पर मुखालिफ पार्टी से रिश्वत के एवज़ उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। हमारा मुतालबा है कि हमारी दुकानों से नाजायज़ कब्जा ख़त्म कराया जाए। म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर के वाइस चेयरमैन मुनीर हुसैन मंगी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के सैयद कायम अली शाह को पार्टी से दस्तबरदार होने का मशवरा देने के खिलाफ कारकुनों में गुस्से की लहर छा गई है। रहनुमाओं को जिलानी हाउस पर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बेहतर खारजा पॉलिसी से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बेहतरी आ रही है। उन्होंने कहा कि अवाम हमारा सरमाया है और हम पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान अवाम के खादिम हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क में भारी अक्सरियत से जीतेगी और अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। शाहनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। और अब आपको बताते हैं कि कच्चे में एक बार फिर डाकुओं का राज कायम हो गया है। अगवा बराए तावान का सिलसिला ना रुक सका है। सादकाबाद थाना भोंग के इलाके न्यू फार्म बाग से मज़ीद 4 अफराद को अगवा कर लिया गया। आमों के बाग में काम करने वाले 4 मजदूरों को मुसल्लह डाकू अगवा करके साथ ले गए। पुलिस की भारी नफरी मखवियों को बाजियाबी के लिए कच्चे रवाना हो गई है। खबर ठट्टा से देते चलें जहाँ गज्जू के करीब ऑयल टैंकर उलटने के बाद इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। टैंकर को लगी हुई आग पर कंट्रोल करने के बाद 2 अफराद की लाशें भी निकाली गईं। लाशें सिविल अस्पताल ठट्टा मुंतकिल कर दी गई हैं। मजीद एक फर्द की टैंकर में मौजूदगी की इत्तलात हैं। सियालकोट पुलिस ने अमानुल्लाह उर्फ माना चोर गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। DPO सियालकोट हसन इकबाल की हिदायत और DSP सदर सलकर साबिर हुसैन छट्टा की ज़ेर निगरानी SHO थाना हेड मराला इरफान ढलो ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए अमानुल्लाह उर्फ माना डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार करके मुलजिमान से मोटरसाइकिलें, 3 मोटर कार्स, गंदम, बकरे, मोबाइल फ़ोन, लाखों रुपये मालियत माल मसरूखा बरामद करके मुलजिमान को पाबंद सलासल कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर पीर अहमद सईद जान सरहंदी कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान में लॉ कॉलेज की तामीर एक अच्छा कदम है जिसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन लॉ कॉलेज क्लासेस का बॉयज़ डिग्री कॉलेज में आगाज़ करना हैरान कुन और परेशान कुन है। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि हमें ख़दशा है कि एक बार फिर लॉ कॉलेज की 1 ग्रेड से 15 ग्रेड तक किसी नौकरियों में दीगर अजला के अफराद को भर्ती किया जाएगा और मकामी नौजवानों को नज़रअंदाज किया जाएगा। लॉ कॉलेज की नौकरियों पर यूनियन काउंसिल टंडो खान और यूनियन काउंसिल लाखाड़ समेत टंडो मोहम्मद खान के डोमिसाइल रखने वालों का हक है। कश्मीर में 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद MS वापडा अस्पताल गुड्डू मुनीर अहमद नाइच बाजियाब न हो सके हैं। डॉक्टर MS की बाजियाबी के लिए वापडा मुलाजमीन का कॉलोनी गेट के सामने धरना दे दिया गया। धरने में मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर डॉक्टर की बाजियाबी के लिए नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीर में बदअमनी बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों को उनके क्लिनिक से अगवा किया जा रहा है, मुलाजमीन में खौफ व हिरास फैल रहा है। शाम होते ही गुड्डू बाज़ार वीरान हो जाता है। मुजाहिरीन ने SSP कश्मीर और आला हुकाम से नोटिस लेकर डॉक्टर समेत ज़िले भर के तमाम मखवियों को फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा किया। कोट अद्दू और लाड़ चौक सरेआम कहवा खाने खुली कचहरी बन गए हैं, जहां पर लाड़ चौक कोट अद्दू के रिहायशी इलाका मकीनों और इमाम मस्जिद ने एहतजाज करते हुए कहा कि काली खोसा नामी सरगना की सरपरस्ती में लाड़ चौक पर सरेआम कहवा खाने खुल गए हैं, जबकि
اس سے اسکول اور کالجز کے طلبہ کو سرعام برائی پر راغب کیا جا رہا ہے۔ فحاشی کے اڈے کے بالکل قریب طلبہ و طالبات کا مدرسہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ پولیس تھانہ سٹی کوٹ ادو کے 2 اہلکار موٹر سائیکل پر روزانہ شام کو اپنا حصہ وصول کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اہل علاقہ نے ڈی پی او مظفر گڑھ سے اپیل کی ہے کہ فحاشی کے اڈے کو چلانے والوں کے خلاف انکوائری کر کے سزا دی جائے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ توسہ شریف پیٹرولنگ پولیس کوٹ موڑ کے انچارج رائے ارشد اور اہلکاروں نے ہیلمٹ آگاہی مہم کو اجاگر کرنے کے لیے کوٹ موڑ سے توسہ شریف تک ریلی کا انعقاد کیا اور لوگوں کو ہیلمٹ کے بارے میں بریف کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد یوسف چانڈیا کی یہ رپورٹ۔ ڈی آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ڈاکٹر محمد عطر وحید کے احکامات کی روشنی میں ایس پی پیٹرولنگ پولیس ڈیرہ غازی خان چودھری محمد شریف اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ پولیس محمد زبیر بنگش کی ہدایت پر پیٹرولنگ پولیس کوٹ موڑ اور پیٹرولنگ پولیس بوڑ توسہ شریف کی جانب سے موٹر سائیکل ہیلمٹ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد شہریوں کو آگاہی دینا تھا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ممتاز حسین سب انسپکٹر اور رائے ارشد جاوید نے کہا کہ حکومت پنجاب نے تمام شاہراہات پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی قرار دیا ہے اور کم عمر کے بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے پر مکمل پابندی عائد کی ہے۔ آئندہ سے کوئی بھی بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلائے گا۔ خلاف ورزی پر چالان کے ساتھ ساتھ قانونی کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ لہٰذا فرض شناس شہری اور ذمہ دار والدین ہونے کا ثبوت دیں، ہیلمٹ کا استعمال کریں اور کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل اور گاڑی چلانے سے روکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد یوسف چانڈیا، میٹرو 1 نیوز، توسہ شریف۔ ڈیرہ غازی خان میں نجی صحافی ایسوسی ایشن کی تحصیل کوٹ ادو کے عہدیداران کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی۔ صدر جنوبی پنجاب شیخ رمضان ندیم نے نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب کے صدر شیخ رمضان ندیم نے تحصیل کوٹ ادو کے عہدیداران میں پی جے اے کے کارڈ تقسیم کیے اور ان سے حلف لیا۔ میں بطور اپنا عہدہ لیجیے گا پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹرڈ تحصیل کوٹ ادو حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں تنظیم پی جے اے کے قواعد و ضوابط ڈسپلن کی پابندی کروں گا۔ جہاں پر صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ قانونیاں نہیں ہیں، ہم صحافی قانونوں کی منظوری کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کو تعاون چاہیے، صحافیوں کا بھی تعاون چاہیے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر میرا یہ میسج سن رہے ہیں، میرا یہ خطاب سن رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جھنڈے تلے آ جائے۔ کیوں؟ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن صحافیوں کے تحفظ کے لیے بھی کام کر رہی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی صحافی کی ڈیتھ ہو جائے تو ڈیتھ کلیم کی صورت میں پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن ان کی ہیلپ کرتی ہے۔ جب کسی صحافی بھائی کے مستحق صحافی بھائی کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو جیل فنڈ کی صورت میں بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ اور میاں اشتیاق علی صاحب کی وجہ سے، ان کی وجہ سے ہم عمرے کی شہادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمرے کا شہادت پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا ایک ممبر حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے ساتھ مل کر اس نعرے کا جواب دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پی جے اے زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد نے پولیس لائن ساہیوال میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس میں ضلع کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی ہے۔ مزید محمد اشرف سیال کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد کی پولیس لائنز ساہیوال میں پریس کانفرنس میں ایس پی انویسٹیگیشن ساہیوال محمد طاہر، اے ایس پی بنگل خان بگٹی اور ضلع اعضاء کے تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او ساہیوال فیصل شہزاد کی تقریب کے دوران 9,36,81,500 روپے مالیت برآمد شدہ مال مسروقہ مدعیان کے حوالے کر دیا۔ حوالگی مال مسروقہ میں 104 موٹر سائیکل، 5 کاریں،
2 शहरोज डाले, 2 ट्रैक्टर ट्राला, 4 रक्शे, मोबाइल फोन्स, सोलर प्लेट्स और नकदी और मुतफर्रक सामान मुद्दईयान के हवाले किया गया। तकरीब के दौरान DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने साहिवाल पुलिस की गुज़श्ता 3 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। 1952 खतरनाक इश्तारी मुजरमान गिरफ्तार किए गए, जिनमें 246 A कैटेगरी के और 1706 B कैटेगरी और 823 अदालती मफरूरान गिरफ्तार किए गए। नाजायज असला रखने वाले 621 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जा से 4 अदद कलाशनकोव, 53 शॉट गैंग्स, 23 राइफल्स, 17 कारबीन, 523 पिस्टल, रिवाल्वर मतअद्दद गोलियां बरामद की गईं। साहिवाल पुलिस जानों की परवाह किए बगैर इंतहाई खतरनाक मुलजमान से 8 पुलिस मुकाबले किए। साहिवाल पुलिस अवाम की जानो माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के मुहाफ़िज़ हैं। साहिवाल पुलिस जराइम के खात्मे, अमन व अमान की क़याम और कानून की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करती चली जा रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सियाल, मेट्रो 1 न्यूज़, साहिवाल। कहरोड़ पक्का सूबाई क़यादत अंजुमन पटवारियान और अपिका की जानिब से हड़ताल की कॉल पर कहरोड़ पक्का में महकमा रेवन्यू के अमले की हड़ताल के साथ साथ दफ्तरों की तालाबंदी करके धरना भी दिया गया है। इस सिलसिले में अंजुमन पटवारियान के सदर गौहर अब्बास की क़यादत में अमले की शदीद नारेबाजी। अंजुमन पटवारियान के सदर गौहर अब्बास का कहना था कि सरकारी मुलाजमीन के हुकूक पर कदगन लगाई जा रही है। महकमा रेवन्यू के अमले का कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात ना माने गए, दफ्तरों की तालाबंदी और धरना जारी रहेगा। जहानिया में नशे में धुत शख्स से मामूली तलकलामी पर फायरिंग से 3 बच्चों का बाप जाँ बहक हो गया है। नवाही चक के रिहायशी काशिफ की मामूली तलकलामी होने पर आरिफ ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद काशिफ को तहसील अस्पताल जहानिया मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँ बर ना हो सका और जाँ बहक हो गया। जहानिया पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई शुरू कर दी। लवाहिकीन का कहना है कि दिन दहाड़े नशे में धुत आरिफ ने काशिफ पर फायरिंग की है, हमें इंसाफ दिया जाए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में नाइंसाफियों के खिलाफ मुलाजमिन का हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% का ऐलान किया था, जबकि वफाक ने वफाकी इदारों के मुलाजमिन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का ऐलान किया था। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी कबीरवाला के तमाम मुलाजमिन ने कलम छोड़ हड़ताल की और एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन में सुपरिटेंडेंट म्यूनसिपल कमेटी राव उमर फारूक, लतीफ़ रज़ा, मुख्तियार अहमद, शहजाद, इसरार अहमद मिर्ज़ा के अलावा दीगर मुलाजमिन ने शिरकत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पंजाब के अलावा दीगर तीनों सूबों में भी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया है, जबकि इस मौके पर वफाक के मुलाजमिन के बराबर इजाफा किया जाए, वरना एपका के फैसले के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। गुजरात पुलिस थाना बुलानी ने 10 साला बच्चे से बदफेली करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बुलानी के इलाके में 10 साला बच्चे से बदफेली के वाक़े पर DPO गुजरात अहमद नवाज शाह ने फौरी नोटिस लेते हुए DSP गुलाम मोहम्मद और SHO नसीराबाद को मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस टीम ने पेशावराना महारत से खुसूसी ऑपरेशन के जरिए वाक़े में मुलव्विस मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जतोई में एक ऐसा ख़ानदान भी आबाद है जिसके आबा और अजदाद अपने ही मुल्क में अपनी जायदाद से हाथ धो बैठे हैं। मज़ीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे हुज़ैफ़ा आरबी की इस रिपोर्ट में। जतोई में एक ऐसा खानदान भी आबाद है जिसके आबाओ अजदाद इस्लाम कबूल करने के बाद अपने ही मुल्क में अपनी जायदाद से हाथ धो बैठे, जो कि हिंदू औकाफ के कब्जे में है। पाकिस्तान बनने के बाद 1949 में हरभजन दास और उसके 4 बेटों गरदारी दास, जवाहर दास, नारायण दास और हीरा दास ने इस्लाम कबूल कर लिया। 1 साल बाद हरभजन दास, जिसका इस्लामी नाम मोहम्मद अहमद रखा गया था, तहसील दीपालपुर में वफात पा गया और वहीं पर दफन कर दिया गया, जबकि उसके 4 बेटे जिनके इस्लामी नाम नूर मोहम्मद, मोहम्मद मुर्तज़ा, गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद बख्श थे, बलवाइयों के हमले के डर से सब कुछ छोड़कर जतोई मुंतकिल हो गए। नूर मोहम्मद की औलाद जिंदा है, जबकि बाकी 3 भाइयों की औलाद नहीं है। जिला पाकपतन और ओकाड़ा में ज़रूरी और कमर्शियल जायदाद तकरीबन 7500 एकड़ के मालिक अब जतोई में कसम पुरसी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जतोई साकू हुण कोई सारा हक नहीं देंदा, असा डर को वेंदन से साकू मरे देन। मेहरबानी करो सारे नाम सारी विरासत चढ़ी वने। प्यू ॾाढी ज़मीन थी, जायदाद है बहुत सारी, कोई हुकूमत खादी वञे, कोई कुछ खादी वञे, कोई समझ नहीं आती। छोटे छोटे सारे बच्चन असां डरदूं लोग कनूं भई मता सा को मार सटन। असीं साढ़े नाने जी ज़मीन इतना है, असां भट्ठे ते खोते वहेंदूं, ओ ज़मींदार आहिनि, असां दलील ते ख्वावे थे
साडा हक साकू मिलिया वञे। हजारों एकड़ कमर्शियल और ज़रूरी अराजी होने के बावजूद वरासत मुंतकिल न होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाने वाला खानदान हिंदू औकाफ से अपनी खोई हुई जायदाद वापस लेने की उम्मीद लिए बैठे हैं। 4 साल से ये खानदान अपनी जायदाद औकाफ से वापस लेने के लिए तगदो में लगे इस उम्मीद से जी रहे हैं कभी तो उनके आबाओ अजदाद की जायदाद वापस मिल जाए और सुख और चैन की जिंदगी गुजार सकें। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। रहीम यार खान में महकमा वाइल्ड लाइफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लियाकतपुर में 5 शिकारी गिरफ्तार कर लिए हैं। शिकार किए गए 4 चिंगारा, हिरन, तीतर, तिलोर भी बरामद किए गए। शिकारियों का ताल्लुक राजनपुर, भावलपुर और मुजफ्फरगढ़ से है। चोलिस्तान में शिकारी गैर कानूनी शिकार कर रहे थे। 72 शिकारियों को VIP प्रोटोकॉल भी दिया गया। शिकारियों को रोकने की कोशिश में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। साहिवाल में महकमा सेहत के तमाम शुबों ने अपने मुतालबात के हक़ में रैली निकाली और दफातर की तालाबंदी की है। मुजाहिरीन का कहना था कि इस रैली और एहतजाज का मकसद तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफा और इसको बहाल कराना है। हुकूमत और ख़ासकर एक नामुंतखब हुकूमत मुलाजमीन का इस्तेहसाल कर रही है और उनके लिए जीना रहना मुश्किल हो रहा है। और उनका मज़ीद कहना था कि वह लाहौर में जारी धरने से इजहार यकजहती करते हैं। अगर वहाँ मुज़ाकरात कामयाब हुए तो साहिवाल के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लाहौर के लिए रवाना होंगे और जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो काम बंद रखेंगे। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन मीरपुर खास की जानिब से भी वापडा के शहीद होने वाले मुलाजमीन को खराज अकीदत पेश करने के लिए यौम शोहदा मनाया गया। वापडा सब डिवीज़न सैटेलाइट टाउन में मुनक्किदा यौम शोहदा के मौके पर ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से रैली निकाली गई जिसमें बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर अमीर अहमद मेमन और यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि एक अंदाजे के मुताबिक हर माह वापडा के 1 दर्जन से ज़ायद मुलाजमीन मुल्क भर में शहीद हो रहे हैं जिसकी वजह TNP की अदम दस्तयाबी है। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद रहमान लड़क की ज़ेर सदारत मुहर्रम अल हराम के इंतजाम का जायज़ा लेने के लिए इजलास मुनक़्क़िद किया गया। पाक रेंजर्स के ज़िम्मेदार और SSP उमरकोट एजाज अहमद शेख ने सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सियाहत, म्यूनसिपल कमेटी, हैस्को और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत देते हुए कहा है कि मुहर्रम अल हराम के दौरान वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम दें, जबकि उन्होंने कहा कि कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि तहसील अहमरपुर सियाल की मारूफ अलमी और अदबी तंजीम बज़्म कलम के ज़ेर एहतमाम शानदार मुशायरा नदीम भाभा की सदारत में हुआ है, जिनमें मुशायरे के मेहमानान ख़ुसूसी नौजवान नस्ल के नुमाइंदा शायर राकिब मुख्तियार, मुनफरिद मिजाज के शायर प्रोफेसर सलीम ननकानी थे। मुशायरे के मेहमान अली हैदर अलवी, अली शरान, फजल इमाम रिजवी, उमर अजीज़, आसिफ महमूद, सैयद इनाम अब्बास, अहमद फराज और नवीद अंजम थे। मुशायरे में शहर भर की कसीर तादाद में समाजी और अदबी शख्सियात ने शिरकत की। शहरनामे से फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।